ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਏਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਏਜੀ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ them ਮੇਕ ਦੈਟ ਕਾਲ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਰਟਨ ਕੰਪੀਟੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ-ਹਾਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੀਗਲ ਨੋ-ਹਾਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਫੋਕਸ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਲੋਟ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਅਸੈਟਸ, ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਲੈਟ them ਡੂ ਇਟ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆਊਟ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੁੱਛੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਯੂ ਆਸਕ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੋਕਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ, ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਯੋਰ ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ? ਨੋ ਵਨ ਚੈੱਕਡ ਵਿਦ ਯੂ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਦ them ਕਿ ਕਿਉਂ ਏਜੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, if someone is giving his or her resignation and they are for personal reason, nothing government can do. They have to find the next best person ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਰੋਂਗ ਪੀਪਲ। ਨੋ, ਲਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ, ਜਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਜਰਿਮ ਮੰਨ ਲੇ? ਲਾਇਰ ਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਇਰ ਥੋੜਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਾਓ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ GPS ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੱਕਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੈਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਵਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਰਾਈਟ, they should be given their right, it is their right ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ,
ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਜਾ ਦੋਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੀ, ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਊ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਰਾਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ 50 ਇਅਰਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਏਗੀ। ਲੈਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਡਿਫਾਈਨ, ਯੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਲੈਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਿਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਵਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫਰੋਮ ਇਟ, ਨਾਈਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਆਊਟ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੈੱਕ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਜਨਰੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਟਰੱਕ ਦਾ GPS, ਟਰੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਯਰ ਟਰੱਕ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ GPS ਤੋਂ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ although with the right intention government is not taking a step forward, it is a step backward, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। there are other simpler ways। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਾਰਟਰ ਹੈਡਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਈ ਤਗਮੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਨੋ verbally lot of things are being said, but it needs to be put on ground। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਯੂਥ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ these are the things that should be considered। It's such sad ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਲੇਅਰ 5 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਾਕਸਰ, ਜੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਮੈਜਿਨ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫਰਮ ਪੁਲਿਸ, ਹੂਐਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਰਵੇ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਐਨੀਵਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋਗੇ। ਬਾਈ ਭਵਿੱਖ ਆਈ ਮੀਨ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਆਉਂਦੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਇਸ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਲਓ, ਐਤਕੀ ਡਰੱਗਸ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਐਤਕੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके राष्ट्रपति बनते ही कई चर्चा शुरू हुई। अब राष्ट्रपत्नी कहा गया उनको कांग्रेस के एक लीडर के द्वारा, और उस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ने ये मैं इसको क्या बोलूँ, सिनिस्टर बोलूँ, बेवकूफ़ी वाली बोलूँ, इमेच्योर बोलूँ,
सेक्सिस्ट बोलूं, आई मीन जितने भी नेगेटिव एडजेक्टिव हैं स्टेटमेंट के साथ जुड़े जा सकते हैं। और उन्होंने मल्टीपल टाइम इस वर्ड का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट के अंदर। देखो पहले कांग्रेस ने दे वर ट्राइंग टू प्रिटेंड कि हमारी मैडम प्रेसिडेंट शी विल बी अ रबर स्टैंप, so that was the first allegations. Once she got selected, now they are making such stupid statements. मेरे को ये लगता है कि ये हमारी opposition का level हो गया है। India deserves a better opposition. India deserves a learned opposition. India deserves an opposition जिनकी moral authority हो कि वो बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर पाए on any kind of gaps जो उनकी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट परफेक्टली चल रही है, there are corruption issues also at certain levels, पर पहले आप में तो वो मॉरल लेवल हो, देयर माइट बी सम अदर इश्यूज आल्सो, पर इंडिया में डेवलपमेंट को बहुत तरीके से, बहुत बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो उस क्वेश्चंस को पूछने के लिए पहले आपके अंदर डेप्थ होनी चाहिए। आपकी डेप्थ कैसे पता चलती है? आपके सवालों से, सिर्फ जवाबों से नहीं। आप किस लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को घेर रहे हैं, किस तरह की ओपोजिशन कर रहे हैं, उससे भी आपकी डेप्थ पता चलती है। मेरे को तो कई बार हैरानी होती है, अधीर रंजन जी, इज ही ट्रूली अ कांग्रेस लीडर और इज ही काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ नेगेटिव इल विल फॉर कांग्रेस? उन्होंने, ये पहली बार नहीं है, अधीर रंजन जी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ मेकिंग सच, आई वुड से, क्रास एंड स्टूपिड रिमार्क्स, जिसकी वजह से कांग्रेस 4 स्टेप पीछे ही जाती है। और मेरे को लगता है कि इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, शी शुड बी द बिगर पर्सन, शी शुड अपोलोजाइज एज अ वुमेन ऑल्सो, एंड स्पेशली जो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, उनकी अगर एक डिसरिस्पेक्ट होती है, इट इज डिसरिस्पेक्ट टू द इंटायर नेशन। तो मेरे को, आई मीन, गिविंग हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट दैट पर्सन, ऑल्दो वो लीडर हैं, वो समझते हैं, मर्यादा मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना तो नहीं चाहिए, बट इवन एट इट्स बेस्ट इट इज जस्ट अ स्टूपिड स्टेटमेंट। तो कांग्रेस अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है या कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है, ये अब देखने वाली बात है, पर चॉइस इन दोनों में से एक ही है। सर, बंगाल के जो एजुकेशन स्कैम के बारे में बात हो रही थी, पिछले कई दिनों से चर्चा में था कि उनका घर मिनी बैंक कहा गया। अब मुझे लग रहा है वो मिनी बैंक मेजर बैंक बन चुका है। 29 करोड़ और मिले हैं सर। देखो, जैसे ही इंक्वायरी बढ़ेगी, लॉट मोर थिंग्स विल बी रिवील्ड, पर आप अगर ये इंक्वायरी सिर्फ उस मिनिस्टर तक रहती है, राइट, सिर्फ पार्था चटर्जी तक रहती है, तो इसका मतलब है कि इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये हो ही नहीं सकता कि एक मिनिस्टर जो इतने डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व हो, अकेला इस तरह से कैश ले रहा हो। ये हो ही नहीं सकता कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि उनकी पार्टी के और लीडर्स इन्वॉल्व ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि उनके बॉसेस को पता ना हो। तो मेरे को ये लगता है कि अगर एक ही बंदे पे फोकस करके इंक्वायरी चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड इंक्वायरी है। मेरे को ए प्रायोरी ये लग रहा है करप्शन हुई है, पर ये कहां कहां तक जाती है, ये किस तरह का नेटवर्क है, उसको पूरे के पूरे को उजागर करना और उसको खत्म करना जरूरी है। फिर किन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, वो लिस्ट भी निकलना जरूरी है कि कौन कौन से लोग पैसे देके जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है, ताकि उनकी जगह जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो आ पाए। और इसके अलावा अगर एक बंदा करप्ट है तो करप्ट है, तो ये तो एक केस है, ये तो एक स्कैंडल है। He might be involved in so many other scandals also. वो बेसिकली इतनी मिनिस्ट्रीज उनके अंडर आती थी, आप उन सब में देखो क्या क्या काम हुआ है, किस किस को काम मिले हैं, उसमें से कितना कितना पैसा बना है। तो ये सारी चीजों की अगर एक भी बड़े मिनिस्टर की इंक्वायरी अगर डिटेल में की जाए, तो आप उस पूरी स्टेट के करप्शन इकोसिस्टम को पकड़ सकते हो। सर, ये तो बात हुई एक स्टेट के एक मिनिस्टर की, एक MLA की, जिसके घर से इतना रुपया मिल रहा है, वो भी कैश। और पूरे भारत में कितनी स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के कितने मिनिस्टर्स हैं और कितने MLAs हैं जो पावर में हैं, और वहां से कितना पैसा मिल सकता है और कितना अनुमान किया जा सकता है, इसका कितना लगाया जा सकता है अनुमान? देखो, अनुमान लगाना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, बट द पॉइंट इज, अगर हम ये करप्शन को खत्म कर दें, करप्शन ने हमारे सिस्टम में बहुत इनएफिशिएंसीज लाई हुई हैं। करप्शन एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कि जो हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड है, जो हमारा यूथ है, उसके पोटेंशियल को ही करप्शन बाहर नहीं आने देती, क्योंकि बेस्ट बंदे को लगता है कि बिना सिफारिश के, बिना पैसे खर्चे में आगे नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो हम अपने देश का पोटेंशियल ही नहीं रियलाइज करते। फिर करप्शन के कारण जो हमने पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करनी है, वही डिलीवर नहीं हो पाती। आपको क्या लगता है
आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में कि पिछले 70 सालों में, अब तो खैर फिर एटलीस्ट एट सर्टेन लेवल करप्शन बहुत कम हुई है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि करप्शन जीरो हो गई है। आप इमेजिन करो पिछले 70 सालों में जो भी पैसा जहां लगना चाहिए था अगर वो लगा होता तो आज हमारा देश कैसा होता, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता, हमारे हॉस्पिटल कैसे होते, हमारे स्कूल कैसे होते, हमारी हेल्थ कैसी होती। इतने लोग बीमारियों से ना मरते, इतने लोग भूख से ना मरते, इतनी वेस्टेजेस ना होती, हम डिपेंडेंट ना होते फॉरेन कंट्रीज पे अपनी एनर्जी के लिए, अपने हथियारों के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मेरे को ये लगता है कि आप कई बार ना हम करप्शन को सिर्फ कितने पैसे खाए उन फिगर से हैरान होते रहते हैं। अगर एक 200 करोड़ की करप्शन हो रही है, उसके पीछे स्टेट का या देश का कितना नुकसान होता है वो उससे कम से कम 10 गुना होता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। और जिस तरह की वेल्थ, पर्सनल वेल्थ इन लोगों ने एक्यूमुलेट कर रखी है, अगर समहाउ हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएं, हमारे देश की कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आज ही सॉल्व हो जाएंगी। सर, दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट पे भी सवाल उठे, कई लिक्वर लाइसेंस कैंसिल किए गए। देखो, बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही फेल्ट कि एक काइंड ऑफ कोल्यूजन कार्टेल बन रहा है, लोग मिलके बिडिंग कर रहे हैं ताकि हाईएस्ट प्राइस बहुत ज्यादा ना जाए और वो अपने रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ गेमिंग है पूरी सिचुएशन की। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सचेकर का नुकसान होता है, पब्लिक का नुकसान होता है, और जो सिन इंडस्ट्री है, शराब वैसी इजीली अवेलेबल होनी नहीं चाहिए, तो वो और सस्ती हो जाती है और ज्यादा अवेलेबल होती है। तो ये बेसिकली इसके अंदर इंक्वायरी होगी और नंबर ऑफ जो वेंडर्स हैं वो दिल्ली में अब रफली सिर्फ 400 रह गए हैं। तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड, क्या प्राइवेट पार्टीज के अलावा क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्साइज ऑफिशियल्स भी उसमें साथ में मिले थे कि नहीं। ये सारी चीज भी क्लैरिटी आने की जरूरत है। सर, यूक्रेन के लोग जो वॉर शुरू होने के साथ ही जिनके पास थोड़ा भी पैसा था, वो अपने आप को, अपने परिवार को सेफ जगह ले जाने की कोशिश की उन्होंने। अब वो वापस अपने ही घरों में वापस आ रहे हैं क्योंकि पैसा वो जो था वो खर्च हो गया। देखो, ये लोगों की मजबूरी है कि उनको वापस सेफ जगह से, जहाँ पे जान का खतरा है वहाँ पे वापस आना पड़ रहा है, जहाँ पे रोज़ बम गिर रहे हैं वहाँ पे वापस आना पड़ रहा है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी वाइफ वोग के कवर पे अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि एक आदमी अपने आप को हीरो कहलवाने के लिए अपने देश को एक अनविनेबल वॉर के अंदर ले गए। अभी तक वो नेटो के मेंबर तो बन नहीं पाए, अभी तक नेटो ने एक भी सोल्जर उनके डिफेंस के लिए भेजा नहीं है, राइट। हथियार देके उनके लोगों को, और कितने महीनों से 150 दिन हो गए इस वॉर को। वहां पे एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मोर देन $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। एक यूक्रेन जैसे साइज के देश का $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने का मतलब समझ सकते हैं कि वो देश कितने दशक पीछे चला गया है। वहां पे उसके कारण ग्लोबली जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एक अलग ही लेवल पे है, चाहे वो इन्फ्लेशन पे है, चाहे सप्लाई चेन्स पे है, चाहे हेल्थ पे, मेडिसिन पे। और जो लोग वॉर जोन के अंदर हैं उनकी सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। जो लोग इंजर्ड है, राइट, जो जिनके पास एक ही केयर टेकर है, आज सिचुएशन ऐसी है कि उनको अलग अलग जाना पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि वहां पे वॉर जोन है, हेल्प भी सिर्फ महीने में एक बार आ पा रही है। सो पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। आई थिंक Zelensky now should have at least backdoor discussion with Russia. They should open that. They should take the NATO out of it because they are benefiting from it. America is benefiting from it. Right? वो अपनी ही वॉर इंडस्ट्री, वो अगर $800 मिलियन के हथियार दे रहे हैं, वो उधार भी दे रहे हैं। So these are basically all loans, और अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं। उनको ये समझना, आज डॉलर यूरो से ऊपर चला गया है। यूरोपियन नेशन को समझना पड़ेगा कि जब से यूरो बना है, यूरो वाज अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, आज डॉलर यूरो से ऊपर चला गया है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और शायद उनको पता भी हो, पर आज मजबूरी है, बिकॉज ज़ेलेंस्की हैज बीन अ पपेट प्रेसिडेंट फॉर वेस्टर्न कंट्रीज। आज नुकसान सिर्फ यूक्रेन के, यूरोप के लोगों का भी हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है, वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। अमेरिका के लोगों का हो रहा है, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन तो फायदा ले रहे हैं, अमेरिका के लोगों का भी हो रहा है। वहां पे महंगाई, हम हिंदुस्तान के अंदर 7%, 8% महंगाई पे हम घबरा रहे हैं, वहां पे 9, 10% महंगाई बढ़ चुकी है, जो हिस्टोरिकली हाई है। डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी हाई इन्फ्लेशन इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। तो और पूरा वर्ल्ड एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये इस वक्त सबसे अनफॉर्चुनेट चीजें हो रही हैं, और मैं इमेजिन करके भी घबरा जाता हूं कि आप इमेजिन करिए, आप
हम एक नॉर्मल सिटी में जहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता हम बीमार हो गए तो हमें वहाँ डॉक्टर मिलेगा, हमें पता है कि केमिस्ट के पास दवाई होगी ही होगी, हमें पता है कि शाम को खाना मिलेगा, अगर घर में आटा खत्म हो गया है तो हमें पता दुकान में अवेलेबल है। अब उन शहरों की हालत देखिए जहाँ पे दुकानें ही खत्म हो चुकी हैं, आटा खत्म हो गया तो अगली बार पता नहीं कब वो ट्रक सहायता के लिए पहुंचेंगे और हम कुछ खा पाएंगे। बच्चा बीमार है, बुखार है, आपको नहीं पता कहाँ डॉक्टर है, घर के बाहर बम फूट रहे हैं, आपको नहीं पता दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ऊपर से ठंड बढ़ती जा रही है। रशिया एक बहुत ही कोल्ड कंट्री है, वहां पे विंटर्स आर वेरी सिवियर, और पता नहीं उनको हीटिंग के लिए ऑयल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में वहां के लोग हैं, वहां के बच्चे हैं, वहां की औरतें हैं। सर एक ऐसी खबर और आई है यूके से, यूके के एडवाइजर ने कहा है कि न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहा है। देखो ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिस्कशंस बंद हो रखी हैं। इन देयर पर्सनल ईगोस लीडर्स हैव स्टॉप्ड डिस्कसिंग विद ईच अदर। पहले एक टाइम होता था कि एक बैकडोर चैनल्स ओपन होते थे। आज के ज़माने में अगर वो बैकडोर चैनल्स खुलते हैं तो मीडिया में खबर आ जाती है। उसके कारण वो वीक फील होते हैं, अपनी डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है उनके सामने वीक फील होते हैं कि ये बैकडोर डिस्कशन कर रहे हैं। और कई बार पहले ऐसा होता था, वो सामने लीडर्स कहते थे कि हम डिस्कशन नहीं कर रहे, पर बैकडोर से डिस्कशन चलती थी, उससे ट्रांसपेरेंसी रहती थी। उनको पता होता था कि भाई ये कोई और डेंजरस स्ट्रेटेजी तो नहीं बना रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ जब ट्रांसपेरेंसी से बात करना बहुत इस वक्त क्रिटिकल है। सिर्फ यही नहीं, मैं उस दिन जो गूगल के एक्स CEO हैं उनकी बात भी सुन रहा था। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चाइना और US आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और वो उसमें ऐसी कटिंग एज और डेंजरस चीजें बना रहे हैं जिसका बहुत नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरे को लगता है कि सारे जो वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे इंडिया भी है, चाहे चाइना है, US है, रशिया है, इनकी आपस में डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं कि ये हथियारों के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। इसमें मेजरली US और रशिया और चाइना की जो एक ओपेकनेस है, चाइना की स्पेशली, कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी उनकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कितना पैसा वो हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, उनके बजट्स के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि वो एक पार्टी रन नेशन है। उनकी तो आर्मी, देशों की आर्मी होती है, उनकी पार्टी की आर्मी है। सो बेसिकली इस तरह की ओपेकनेस के साथ पूरी दुनिया नर्वस होती है। उनको लगता है पता नहीं ये कितना पैसा खर्च रहे हैं और क्या क्या हम पीछे ना रह जाएं। तो उस डर में दूसरे देश भी हथियारों की, अब जैसे हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस शुरू हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेपन्स की रेस शुरू हो गई है। तो अल्टीमेटली इट पुट्स इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और ये हथियार जो कोल्ड वॉर के टाइम के हथियारों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, राइट। ये अपने आप ही सर्टेन डेंजरस डिसीजन ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी खतरा है। तो मेरे को लगता है कि उनके एडवाइजर का ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये न्यूक्लियर वॉर का एक डेंजर तो बड़ा ही है, एट द सेम टाइम विद द करंट टेक्नोलॉजीज एक साइबर वॉरफेयर, राइट। और भी दुनिया इस वक्त एक काफ़ी लेवल तक पहले से खतरनाक जगह बन गई हुई है। शुक्रिया सर, इस तरह की मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए और ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।